students, how are you? Hope you're very well at home and you're taking good care of your studies. As I always ask you, I know you're smart enough to understand the value of time and that any crisis is not enough to stop you from keeping on with your studies and the work which is important for you, right? So, hope you are studying well and having no problem. Now, in the last lecture, we had discussed about a very important part of the cell, the controlling unit of the cell, and that was the nucleus. I had drawn the diagram, I had explained you in short about the DNA, RNA, etc. We will discuss about them little more in detail later on if time permits. But right now, we have completed three very important parts of the cell. Cytoplasm is remaining. Plasma membrane, as I had told you earlier, plasma membrane, nucleus and cytoplasm. These are the three basic units which make an entity capable of being called a cell. किसी भी structure को हम cell तब तक नहीं बोल सकते जब तक इसमें ये तीनों चीजें प्रॉपरली प्रेजेंट ना हो. अब न्यूक्लियस होना उसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर वही राउंड शेप स्ट्रक्चर जो अपन ने पढ़ा वो न्यूक्लियस हो. इसी से वर्ड प्रोकैरियोटिक आ जाता है. एज आई टोल्ड यू, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ राउंड शेप न्यूक्लियस एज वी हैड डिस्कस्ड. और उनका जो लेकिन उनके पास जो डीएनए होता है वो होता है, दैट इज द सेट ऑफ एंड दैट इज द मेन हार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ना, द क्रोमोसोम्स वो होते हैं एंड दैट इज इटसेल्फ इज कॉल्ड द न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मैं आपको और आगे डिस्कस करके बताऊंगी, ठीक है. बट टुडे we need to discuss about yet another part and of the cell which is very important, that is cytoplasm. बहुत उसकी डिटेलिंग हमें नहीं जाननी बिकॉज हम साइटोप्लाज्म के ही पार्ट्स पढ़ेंगे लेटर ऑन. दोज आर द सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है. बट फिर भी आपको बताऊं, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियस. और अब ये जैसे मान लो दिस इज अ सेल, इसको मान के चलो दिस इज अ सेल. इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होगा. सेल अगर प्लांट है तो सेल वॉल होगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये न्यूक्लियस होगा. सो हियर this one, if this is a plant cell, obviously there will be a membrane called the plasma membrane and an outer covering the cell wall, and this is the nucleus. अब ये वाला जो portion है ना, this portion, that is called the cytoplasm. And cytoplasm was first observed by a scientist called Kolliker. Kolliker observed the cytoplasm and it is the basic place or the place where all the chemical reactions occur in the cell. It is the site for all the chemical reactions, metabolic processes to occur. So cytoplasm is a base or a structure where all the reactions occur. ठीक है. And it also holds various, इसमें कई माइटोकॉन्ड्रिया होगा, किसी जगह पे क्लोरोप्लास्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइसोसोम होंगे. ये सारे स्ट्रक्चर्स ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर ऑल प्रेजेंट इन द cytoplasm. So it is the basic site for holding all the cell organelles and for all the reactions to occur. So that is about the cytoplasm. So you understand how important it is, and it is in a, sometimes it is said it is in a sol gel state, like solution, solvent solution, gel आप जानते हो. So we can ना तो वो एक फ्लोई लिक्विड है ना वो बिल्कुल थिक सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर है. इट इज इन बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ जेल लाइक स्ट्रक्चर, अ थिक लिक्विड एज आई यूज द वर्ड, व्हिच इज द साइटोप्लाज्म, व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर. ठीक है, इन 1862 कॉलिकर ने उसको देखा था. बेसिकली तो ये था ही, लेकिन उसके डीपली उसके बारे में स्टडी किया था तो कॉलिकर ने किया. एंड इसका इंपॉर्टेंस यही है कि विदाउट साइटोप्लाज्म एनी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन विल नॉट अकर, राइट. अगर रिएक्शन नहीं होगा तो फिर कोई भी सेल फंक्शन कैसे करेगा, राइट. एंड यू नो वायरसेस
because they have DNA और RNA. They have a protein coat around them. Perfect plasma membrane नहीं होती, लेकिन protein coat जरूर होता है. But ये जो liquid है, that also is lacking. So they cannot be considered as cells. So I always say viruses are acellular. तो ठीक है, cytoplasm. अब ये cytoplasm plus nucleoplasm, or I can say cytoplasm प्लस न्यूक्लियस. न्यूक्लियोप्लाज्म भी तो कह सकती हूँ, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म ही था. दे बोथ मेक अप व्हाट, अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं, इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. जो भी फिजिकल केमिकल एंटिटी है, या बिकॉज ऑफ दिस प्रोटोप्लाज्म द सेल एग्जिस्ट, राइट. तो दिस इज कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड फेलिक्स डुचार्डिन. फेलिक्स डुचार्डिन discovered both the structures like protoplasm, but it and called it and named it sarcode. उसने बस ये है कि प्रोटोप्लाज्म नाम नहीं दिया था. उसने उसको क्या बुलाया था, जब फर्स्ट ऑब्जर्व किया कि एक स्ट्रक्चर है थिक लिक्विड लाइक और उसके अंदर न्यूक्लियस है, वो उसको नाम क्या दिया उसने, सार्कोड. लेटर ऑन पुरकिनये, सी it was पुरकिनजे प्रोनाउंस करते हैं. एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज पुरकिनये. इन 1839 उसमें उसने इस सार्कोड के लिए एग्जैक्ट वर्ड दिया, विच इज, एक्सक्यूज मी, एग्जैक्ट वर्ड दिया विच इज प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. सो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, डिस्कवर्ड बाय फेलिक्स डुचार्डिन, नेम्ड बाय पुरकिनये इन 1839. It was given the name protoplasm. From then it is being called protoplasm. ठीक है. So this is about protoplasm. Now जब हमने ये देख लिया है, तो अब साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो साइटोप्लाज्म में क्या दो चीजें थी. एक तो पूरा सॉल्यूशन था. उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स थे. तो सॉल्यूशन साइटोसोल, वो तो सॉल्यूशन था, उसमें से सेल ऑर्गेनेल निकाल दें तो जो बच जाएगा साइटोसोल है. दैट इज अ लिक्विड, थिक लिक्विड, जहाँ पे रिएक्शंस होते रहते हैं. लेकिन हमें जो डिटेल में पढ़ना है, दैट इज अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स, राइट. सो प्लीज नोट दिस डाउन. Then we will study about the cell organelles, because the most important, every cell organelle is like a part of the cell, and it has which is very important part of a family in which everybody has a responsibility, and all of them they take that responsibility very seriously and do their work very efficiently. So let us study about the cell organelles one by one. ठीक है. Today in this lecture it is not possible that we study about all the cell organelles, right? So in this lecture we will be studying about the double membranous cell organelles. As I told you, cell organelles कैसे कैसे थे. एक तो थे डबल मेम्ब्रेन वाले, डबल कवरिंग वाले, एक थे सिंगल मेम्ब्रेन वाले. तो आज हम क्या, और कुछ थे नॉन मेम्ब्रेनस जिनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी. तो वी स्टडी ऑल दीज स्टेप बाय स्टेप. पहले अपन पढ़ते हैं अबाउट द डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल. वो सेल ऑर्गेनेल्स जिनकी दो मेम्ब्रेन्स हो. ठीक है. This is B.
ओके, सो इसमें जो हम पहला पढ़ेंगे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हम दो पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट इज वन टाइप ऑफ प्लास्टिड। So first we will study about the mitochondria. ठीक है, अब ये mitochondria, well I like it a lot because I like to call it, instead of mitochondria, if I use the word mitochondria, chondria for thread like structure, and mito की जगह अगर हम mighty करें, mighty क्या होता है, बहुत strong, full of energy, right? Mitochondria would be a better word actually, but no, we have to call it mitochondria. But this mitochondria is the storage battery of the cell, the powerhouse of the cell. It is filled with ATP, or it produces ATP, the full energy required by the cell. So I've used the word mitochondria. So now let us study about mitochondria in detail. How is mitochondria structured, how it functions? Okay, so now let's study with the help of, I would be teaching you, ज़्यादा लिखने से बेटर है डायग्राम से समझें। डायग्राम से जब हम समझते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। दिस इज वन मेम्ब्रेन, और आप जानते हो इसको मैं अगर ऐसे डबल लिखाऊं तो आपको समझ में आ रहा है, इट वुड बी लाइक इट हैज स्पेस। ऐसा नहीं है कि खाली ये है, इट हैज स्पेस, इसके अंदर कोई फ्लूइड फील्ड हो सकता है ना। नो प्लेस इन द सेल इज एम्प्टी और फिल्ड विथ एयर। कुछ एयर सैक्स वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपन लेटर पढ़ेंगे, लेकिन नन ऑफ द सेल पार्ट्स और सेल ऑर्गेनल्स आर एम्प्टी फ्रॉम विद इन, दे आर having that thick kind of liquid, क्योंकि उसके बिना कोई भी रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होता। तो इसको अब मैं मिटाती हूँ सो दैट क्लियर रहे, लेकिन दिस वाज जस्ट टू शो दैट इट हैज स्पेस विद इट। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, and this mitochondria was named by a scientist called Benda. Benda named it. कार्ल बेंडा ने इसको नेम किया था as mitochondria. This was also a question in NTSE. जब कुछ साल पहले 2013 में कुछ साल पहले NTSE 8th में भी होता था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। Who named it? पहले इसको बायोप्लास्ट बोलते थे, लेकिन who named it mitochondria? Benda. So Benda named it, ये ध्यान रखना, ठीक है। Write it down in paragraph so that it does not interfere with our diagram understanding. माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और इसको आप एक जैसे पीनट होता है ना, पीनट विद द शेल, अगर उसको खोले तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, सिमिलर टू दैट। दाना हटा दो, एक जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर थिक लिक्विड आप इमेजिन कर सकते हो। बस ये है कि उसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है, वैसी ही कवरिंग, जो फोल्डेड है, किसी किसी जगह से अंदर खींची हुई, समझ में आ रहा है। सो दिस इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो कुछ इस टाइप से होती है इसकी। इट इज फोल्डेड लाइक दिस फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, it has foldings like this. अब 3 डायमेंशनल में इमेजिन करो, ये जो वो दाना है वो एक सीधी सी ऐसे मेम्ब्रेन है पूरी, उसमें एक सीधा दूसरी मेम्ब्रेन है, उसको अंदर की ओर थोड़ा थोड़ा खींच लो। इमेजिन कर सकते हो, कोई भी स्ट्रक्चर लिया आपने, मान लो आपको पीनट बहुत छोटी लगती है, तो एक कोई भी बोल ही ले लो, वो बोल राउंड है, उसके अंदर दूसरा बोल राउंड है, वो 2 मेम्ब्रेन्स हो गई। अब जो अंदर वाला है, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल, इनकी भी कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का सिमिलर होता है, तो आप उसको थोड़ा अंदर खींचो हर जगह से, समझ में आ रहा है। सो कैसे हो जाएगा स्ट्रक्चर, उस टाइप की ये इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन हैज लॉट ऑफ इनफोल्डिंग्स
और इनको, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको बोला जाता है क्रिस्टे। क्या बोलते हैं इनको? क्रिस्टे। और यहाँ पे जो लिक्विड फिल्ड होगा, जो थिक लिक्विड फिल्ड होगा, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस इज इनर मेम्ब्रेन, पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल और पेरीमेम्ब्रेन्स के बीच वाला स्पेस जो है, वो यहां पे भी लिक्विड होता है, ठीक है। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है या क्रिस्टे हैं, इनके ऊपर देयर आर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, सभी पे होते हैं स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ठीक है। डू यू गेट इट? आई एम नॉट ड्रॉइंग ऑन ऑल because that would be very time consuming, but all these cristae have structures like this, and these are called the oxysomes. Oxysomes, or they are also termed as F0 F1 particles. अभी मैं आपको बताऊंगी इनका रोल क्या है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन थोड़ी सी अंदर की ओर फोल्डेड है, उन फोल्ड्स के ऊपर हर जगह ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम बोलते हैं, ठीक है। बीच में एक थिक लिक्विड टाइप है जो है मैट्रिक्स, ठीक है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा है? ओके। और अब ये मैं इसकी बात कर रही हूं, इधर ध्यान दीजिए। ये जो ऑक्सीजोम है, ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, F0 F1 लाइक दिस, दिस इज द हेड, दिस स्ट्रक्चर F0 F1, दिस एंड F0 F1, और दीज ऑक्सीजोम, इसको एनलार्ज करें ना तो कुछ इस टाइप का होता है, और दीज आर द ऑक्सीजोम्स। और ऑक्सीजोम्स का काम क्या है? एटीपी सिंथेसाइजिंग यूनिट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जिस जगह पे एटीपी सिंथेसाइज होता है वो एग्जैक्टली इज द ऑक्सीजोम, ठीक है। सो एटीपी, and now the word comes as ATP. Now what is this? ATP. I'll discuss a little later. बस अभी आप लिख लो, इसका पूरा डायग्राम अपन कंप्लीट कर ले, that would be better. अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर there are lots and lots of small structures like this. These are the राइबोसोम्स। ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज अ लूप ऑफ डीएनए। डीएनए मैंने बताया था ना पिछली जगह पे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास लूप ऑफ डीएनए होता है। अब मैंने ये दो पास पास इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे से आपके क्वेश्चन भी आता है। आई विल शो यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इन अ फ्यू मोमेंट्स। पहले अपन एक बार इसके स्ट्रक्चर को वापस समझ लेते हैं। सी, outer membrane है, mitochondria is a structure which has two membranes, outer membrane and inner membrane. Inner membrane is, and there is fluid here also and here also. पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस है, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में भी स्पेस होता है हल्का सा। इनफोल्डेड होती है इनर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिनको ऑक्सीजोम्स बोलते हैं या F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। F0 F1 पार्टिकल्स वो जगह है जहां पे ATP सिंथेसाइज होता है, the full form of ATP, and all I'll discuss with the functions.
Along with these structures, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होते हैं एंड दोज राइबोसोम्स के आगे आप लिख सकते हो 70S. अभी सिर्फ इतना लिखो 70S. मैं आपको राइबोसोम के बारे में जब बताऊंगी ना, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन मेकिंग यूनिट्स ऑफ द सेल. जिस यूनिट पे प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम. तो और 70S अभी आप लिख लो. आई विल एक्सप्लेन लेटर. जब राइबोसोम पढ़ाऊंगी तब आपको पढ़ाऊंगी कि 70S क्या था. ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाएगा परफेक्टली. अभी आप ये लिख दो कि इसमें कैसे राइबोसोम होते हैं? 70S. ये राइबोसोम जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है वो साइटोप्लाज्म में भी होती है, इसमें भी है. याद है मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, उस पे भी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स थे. कई जगहों पे प्रेजेंट है, लेकिन काम क्या है? प्रोटीन बनाना. लेटर ऑन इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी इंपॉर्टेंस बताती हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया वैसे तो एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर का ऑर्गेनेल है, लेकिन इसके पास खुद का अपना थोड़ा सा डीएनए है और इसके पास राइबोसोम है जो खुद के प्रोटीन बना सकता है. इन दो की वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास थोड़ी सी अपने आप काम करने वाली एबिलिटी आ जाती है. अपने प्रोटीन, यहाँ पे एटीपी बनता है, एटीपी बनता है, उसके लिए कई प्रोटीन्स चाहिए. उस मैकेनिज्म को हेल्प करने के लिए एंजाइम्स चाहिए. एंजाइम्स कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो यूज होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं. लेटर ऑन आई टॉक इफ इट इज नेसेसरी. अदरवाइज आप ये समझो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम होता है. वो डीएनए इस राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि तुझे कैसे प्रोटीन बनाने. मैंने आपको बोला था ना, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो उसका काम क्या है? इंस्ट्रक्शन देना कि कैसे प्रोटीन बनेगा, कैसे सेल ग्रो करेगा. ये ऑर्गेनेल अगर इसके पास ये दोनों नहीं होते तो ये डिपेंड करता न्यूक्लियस के ऊपर टू गेट द इंस्ट्रक्शन. लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर इसको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहने पड़ता है, खुद का कुछ काम ये खुद कर लेता है. इसीलिए इन दो की वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं. ये ध्यान रखना, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल. ये आप लिख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल because it has its own DNA and ribosome. Mitochondria is called semi-autonomous cell organelle because it has its own DNA and ribosomes. So, it can make its own proteins and some of its own proteins and enzymes. Autonomous word coming from automatic. बट ये फुली अपने आप वर्क नहीं कर सकता, इसलिए सेमी मतलब हाफ ऑटोमेटिक. सो यू नीड टू नो. ये क्वेश्चन आता है, विच आर द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स. दो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. लेटर ऑन बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये लिख लो. दोनों का एक ही रीजन है क्यों सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं. आई होप यू हैव रिटन इट डाउन. Mitochondria called semi-autonomous cell organelle because it has its own DNA and ribosomes, so it can make some of its proteins and enzymes by itself. So it is semi-autonomous. ये याद रखना, ठीक है. So this is about the structure of the mitochondria. Now, mitochondria के लिए power house of the cell बोलते हैं. पावर हाउस ऑफ द सेल. इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हैं, इसको स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल बोलते हैं. अब व्हाई इज इट कॉल्ड दिस? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इट कैन मेक व्हाट? बिकॉज इट कैन मेक, it produces ATP. ATP. What is ATP? ATP, adenosine
phosphate, ATP, or ATP is the energy currency of cell. ये याद करो, अभी एक्सप्लेन करती हूं मैं. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल और एनी ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी मिलती है, हमें, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी मिलती है टू स्टे अलाइव एंड डू सम काइंड ऑफ वर्क, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जो एनर्जी मिलती है ना हमें, उसको केमिकली नाम क्या दिया गया है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है? एटीपी है. एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल. समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? स्टोरेज बैटरी ऑफ सेल लिख सकते हो. ठीक है. सो होप दिस मच इज क्लियर. नाउ एक चीज मैं आपको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूं. ये एटीपी बनाता कैसे है? आपको इतना ही करना है. पावर हाउस ऑफ द सेल, इट जनरेट्स ATP. ATP is adenosine triphosphate, the energy currency of cell. Mitochondria is called semi-autonomous cell organelle. ठीक है, इतना आपको याद रखना है. ये जो कई बार पूछते हैं, what are the finger-like projections in mitochondria called cristae? What is the ground substance called matrix? ठीक है, तो ये आपको याद है. अब मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप इसको बना लो तो I'll wait for a minute and then explain you how energy is formed. आपको पूरा प्रोसेस नहीं आना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए. सो आई जस्ट एक्सप्लेन. ठीक है. सो यू रिटन है. ठीक है. नाउ आई एक्सप्लेन दिस हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा? मैं वापस आपको याद दिलाऊं. एक सेल था जिसके अंदर न्यूक्लियस था. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे. मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है. हमने जो खाना खाया, ये वाला स्ट्रक्चर ये है मेरी, मैंने इसको एनलार्ज कर दिया. हमने जो स्ट्रक्चर खाया वो बॉडी में, हमने जो फूड खाया, इट गॉट डाइजेस्टेड इन द बॉडी. Then nutrients got absorbed. Nutrients कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, एक ग्लूकोज. जैसे हमने ग्लूकोन डी ही पी लिया. ग्लूकोन डी पिया, इट वेंट टू अवर बॉडी, इट गॉट डाइजेस्टेड. ग्लूकोज हमारे ब्लड में गया, अब्सॉर्ब हुआ, और ब्लड से वो हर सेल तक पहुंच गया. मानो इस सेल तक क्या आ गया? ग्लूकोज आया. और साथ साथ हम सांस भी लेते. सांस भी लेते तो क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है. इस ग्लूकोज अगर इस सेल में जाके ऐसे ही पड़ा रहेगा तो क्या हमें एनर्जी मिलेगी टू डू वर्क? नो. ग्लूकोज तो बाहर भी पड़ा था, नहीं मिलती ना. दैट एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड, उसको निकालना है. तो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ मिलता है तो रिएक्शन अकर होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो अब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर हुआ, यहाँ ये टूट जाता है, ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, ब्रेक. वो आपका नहीं है, बट ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू टू. द प्रोसेस इज कॉल्ड glycolysis. It is done in the cytoplasm. उसके बाद वो ग्लूकोज जो दो टुकड़े होते हैं, उसका नाम होता है पायरुविक एसिड. और वो कहाँ एंटर होता है? यहाँ पे. वो कहाँ एंटर होगा? इन द माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे एक साइकिल चलती है which is called Krebs cycle. साइकिल मतलब हमारी चलाने वाली साइकिल नहीं. कोई भी रिएक्शंस जो साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है, ओरिजिनल से स्टार्ट होके वापस वहीं आ रहा है, तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं. साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. उसके एंड में एटीपी प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट ईयर विल बी स्टडीइंग क्रेब्स साइकिल इन डिटेल. लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए, हमने जो फूड खाया, डाइजेस्ट हुआ, उसके न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हो गए और हर सेल तक पहुंच गए. हर सेल तक पहुंचे तो ग्लूकोज जैसे ही एंटर, इवन प्रोटीन्स, फैट्स, वो भी जाएंगे यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में. लेकिन ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म में घुसता है और दो टुकड़ों में टूट जाता है. टूटता
तो वो जो दो टुकड़े बने वो है पायरुविक एसिड, वो दोनों कहाँ एंटर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शंस की सीरीज चलती है जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल के एंड में क्या बनता है? ATP, which is the energy currency. And because of this ability which the mitochondria has got, it is called the powerhouse of the cell. Hope this is clear. Okay, just draw it. ये just मैंने एक रफ डायग्राम बनाया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? This is the main diagram of the mitochondria. Hope this is clear. आपको याद रखना है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल की, स्कूल में पूछ सकते हैं. What is it called? Powerhouse, storage battery. What is ATP, which is the energy currency of cell? ये आते हैं क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? So I'll wait for a minute. If you need to draw it, then we'll start the next cell organelle, that is the chloroplast. ये दो मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल हम करते हैं आज. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, ठीक है? So hope this you've drawn it. Let us move to the next double membranous cell organelle, which is the plastid. Plastids. पहले अपन प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ते हैं. ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट सेल के अंदर 3 टाइप के होते हैं. हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं. एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट और तीसरे होता है क्लोरोप्लास्ट. हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये ध्यान में रखना है प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप के प्लास्टिड होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में ही होते हैं. एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है? प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. अब बायो में कई बार और इन एनी साइंसेस sometimes the word chroma is related. It comes again and again. Sometimes you find it in books of physics also. You can find it in chemistry. You can find it in biology. Anywhere. Sometimes this word represents or is related to color. Chroma word color. ठीक है? यहाँ पे chromoplast, these plastids have pigments of all colors except green. जैसे पिंक. एक प्लांट के अंदर आपने कितने कलर्स देखे होंगे? पिंक देखा होगा, येलो देखा होगा, ब्राउन होगा, रेड होगा. सो मेनी फ्लावर्स, सो मेनी फ्रूट्स. इनमें इतने सारे कलर क्यों होते हैं? कलर होते हैं पिगमेंट्स की वजह से. तो ये जो वर्ड पिगमेंट है ना, इट इज गिवन टू अ कलर गिविंग सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस विच कैन गिव कलर इज टर्म्ड एज अ पिगमेंट. और क्रोमोप्लास्ट वो वाले प्लास्टिड होते हैं जिनके अंदर अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं. जैसे टमाटो है ना, पहले ग्रीन होता है फिर रेड बन जाता है. पहले क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें, फिर वो धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदलते हैं और उसमें एक पिगमेंट आ जाता है लाइकोपीन. कभी आपने ना ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज कुछ क्रीम्स वाले भी
ये दावा करते हैं कि इट इज फिल्ड विद अ पिगमेंट कॉल्ड लाइकोपीन. सम मेडिसिन्स आल्सो हैव दैट. सो लाइकोपीन याद नहीं रहे तो डजंट मैटर, बट आपको ये ध्यान देना है कि डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से फ्लावर में अलग कलर होता है, कई फ्रूट्स में अलग कलर्स आते हैं. तो वो सारे स्ट्रक्चर्स जो वो पिगमेंट होल्ड करते हैं, वो छोटे छोटे यूनिट जिसके अंदर पिगमेंट भरा हुआ है, उनको क्या बोलते हैं हम? क्रोमोप्लास्ट. क्लियर है? अब मैंने कहा एक्सेप्ट ग्रीन, बस ग्रीन कलर वाले को हम क्रोमोप्लास्ट नहीं बोलते, बिकॉज उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. ग्रीन कलर वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हो? क्लोरोप्लास्ट हैव green pigment called, yes, it is called chlorophyll. And chlorophyll तो सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसी से तो फोटोसिंथेसिस होता है. सो ग्रीन कलर वाले पिगमेंट प्लास्टिड्स है क्लोरोप्लास्ट, अदर ऑल क्रोमोप्लास्ट. अब इन दोनों के इतने सारे कलर ले लिए, तो इस ल्यूकोप्लास्ट के लिए क्या बचा? कलरलेस प्लास्टिड्स है. ल्यूको वर्ड हैविंग नो कलर, या व्हाइट से डिनोट कर सकते हो आप. कलर की जगह कलरलेस और व्हाइट. अब जब इनका काम कलर देना नहीं है, ये तो कलर देते हैं, ये सन एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये क्या करेंगे? इन ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है, आई विल यूज अनदर कलर सो दैट यू कैन नो. They have work of storage. Storage किस चीज का? Storage of फैट्स भी कर सकते हैं, फैट्स और ऑयल्स. कई प्लांट्स में ऑयल्स होते हैं ना, जैसे सनफ्लावर ऑयल होता है, ग्राउंडनट ऑयल होता है ना, प्लांट्स में से ही तो ऑयल आता है, तो वो स्टोर करते हैं. दे कैन स्टोर proteins also, and they can store carbohydrates also. Carbohydrates like glucose. अब आपको अगर देखो स्कूल के लिए तो इतना बहुत है, दे स्टोर फूड. ऑयल वाले इनको भी हम नाम देते हैं, ल्यूकोप्लास्ट है ना, तो ल्यूकोप्लास्ट, सारे को ल्यूकोप्लास्ट बोल देंगे तो कैसे पता चलेगा किसमें ऑयल है किसमें प्रोटीन है, राइट? सो दीज अगेन आर नेम्ड द प्रोटीन कंटेनिंग वंस. इनको हम बोल सकते हैं प्रोटीनोप्लास्ट. क्या? प्रोटीनोप्लास्ट या और ए ल्यूरोप्लास्ट. ठीक है? फैट वाले को हम बोलते हैं एलायोप्लास्ट. एलायोप्लास्ट. कार्बोहाइड्रेट के वाले को हम बोलते हैं, सी दिस एलायोप्लास्ट. एक मिनट, ओ इट्स नॉट गेटिंग. एलायोसी OIL, एलायोप्लास्ट. ऑयल इसी में है. एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी स्टोर करते हैं. तो दीज आर द ल्यूकोप्लास्ट. कार्बोहाइड्रेट वाले को नाम दिया जाता है अमाइलोप्लास्ट. अब सी, इफ यू कैन नॉट रिमेंबर द वर्ड फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. स्कूल में ये वाले नाम नहीं पूछे जाते, बट सर्टेन ओलंपियाड्स डू आस्क दीज नेम्स. तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना. प्लास्ट वर्ड है, ल्यूकोप्लास्ट है, स्टोरेज करता है. प्रोटीन स्टोर करता है तो प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट. फैट करता है तो ऑयल, देखो मैंने इस वर्ड में ही ऑयल है, OIL, ऑयल स्टोर करता है. अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, शुगर स्टोर करता है. ठीक है? तो दिस इज बेसिकली अबाउट द प्लास्टिक. स्कूल एग्जाम्स में भी ये बहुत पूछते, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्या क्या रोल्स हैं. ठीक है? नाम हो सकता है ना पूछे, बट फॉर ओलंपियाड्स यू शुड नो देम. ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया. एंड दिस जो फूड स्टोरेज होते हैं ना, जनरली अंडरग्राउंड पार्ट्स,
जहाँ पे फूड का स्टोरेज होता है वहां पाए जाते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे? फ्लावर्स में, पेटल्स में, उनमें पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट तो आप जानते हो लीव्स में ही होता है, ठीक है, बिकॉज ग्रीन कलर सब कई छोटे हर्ब्स के ट्विग्स जो स्टेम में भी होता है, बट ज्यादातर लीफ में होता है। सो इज दिस मच क्लियर? ओके, so now this is about the plastids, but we need to study more about chloroplast in little detail, because chloroplast is called the kitchen of the cell. Kitchen of the cell तो है ही क्योंकि ये फूड बनाता है, लेकिन indirectly it is preparing food for the whole world. तो इसके बारे में तो हमको पता होना ही चाहिए, ठीक है? So let us study. You just write it for 1 minute. I'll wait. उसके बाद मैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Okay. Hope you've written it. Okay. Now I will make the structure of the chloroplast. Chloroplast was observed by A.V. Leeuwenhoek only, but named by a scientist called Schimper. S-C-H-I-M-P-E-R. Schimper ने उसको नाम दिया था. It is the green plastid. कई बार इसको नाम क्या दिया जाता है? Green plastid. It is also termed as kitchen of the cell. Why kitchen of the cell? Because it prepares food. क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सन की एनर्जी को यूज कर सकता है, ठीक है? So is that much clear? Okay. So now I'll draw. It is a double membranous structure. और इसका ये वेरियस प्लांट्स में पाए जाते हैं, एल्गी में भी पाया जाता है। तो वेरियस प्लांट अलग अलग शेप्स हो सकते हैं उसके, जैसे कुछ में रिबन शेप हो सकते हैं, कप शेप हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मैक्सिमम पाए जाने वाले हैं जो हायर प्लांट्स में होते हैं उसका स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं। एंड इट इज अ डबल membranous structure like this. This is outer membrane. इसकी इनर मेम्ब्रेन भी स्ट्रेट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर फोल्डेड थी ना, इसकी अंदर फोल्डेड नहीं है, इट इज स्ट्रेट लाइक दिस। और एज आई से इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में सोचे तो ये ऐसा होगा, ठीक है, दिस वे। क्लियर है? दैट मीन्स इसमें स्पेस है, पूरा थिक लिक्विड फिल्ड है, ठीक है ना, वो का वो। सो नाउ आई एम रबिंग दिस। राइट, इज दिस क्लियर? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। इसमें तो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए याद रखने में। मेम्ब्रेन 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 वर्ड यू यूज सो मेनी टाइम्स। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, अंदर क्या भरा हुआ है? थिक लिक्विड ही है वही। सो दैट माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बोला था मैट्रिक्स, इसमें हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो इसको कई बार बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एनी, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, ठीक है? तो ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये क्या है? स्ट्रोमा। क्लियर हो गया? ओके। अब इसके अंदर, लिक्विड के अंदर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस, विच आर ऑल इंटरकनेक्टेड लाइक दिस। ठीक है? I'm not drawing many, but there are lots and lots of structures like this. ठीक है? ये ऐसे structures होते हैं, ये वाले जो structures है, these are called the grana. Grana for all of them, singular इसको granum भी बोल सकते हैं,
प्लूरल ग्रेना, सिंगुलर ग्रैनम। एक की बात करें तो ग्रैनम, सारे ग्रेना है। और ये दो मेजर स्ट्रक्चर्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये मैंने ग्रीन क्यों बनाया पता है आपको? क्योंकि क्लोरोफिल इस पे होता है। क्लोरोफिल जो होता है ना, लाइट अब्सॉर्ब कर सकता है, वो किस जगह होता है? वो इस लिक्विड में नहीं होता, वो इधर होता है, ग्रेना के ऊपर। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस कहाँ स्टार्ट होता है? ग्रेना के ऊपर स्टार्ट होता है। और जब लाइट इधर करती है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो पहला रिएक्शन होता है लाइट रिएक्शन, तो इसको हम बोल देते हैं साइट। साइट मतलब प्लेस ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आप चाहे याद ना रखें, लेकिन इजीली समझ आएगा। यहाँ पे क्लोरोफिल है, लाइट इधर भी, तो फोटोसिंथेसिस यहाँ स्टार्ट हुआ। 10th में आप लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन भी पढ़ेंगे। अब ये ग्रेना कैसे स्ट्रक्चर्स है? जैसे आपको समझना है तो एक लिक्विड, एक कप है, आपने लिक्विड से भर दिया उसको थिक, उसमें आपने छोटे छोटे कॉइन्स ले लिए, 5 रुपी कॉइन्स, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दिया, तो एक स्टैक बना। वो स्टैक को क्या करेंगे अपन? ग्रेना। उसको दूसरे से मेम्ब्रेन से कवर करके दूसरे से बांध दिया, तीसरे से बांध दिया, चौथे से बांध दिया, तो वो समझ रहा है, दैट इज ग्रेना। उस ग्रेना को अपन ने सस्पेंड कर दिया उस थिक लिक्विड में। जो थिक लिक्विड क्या था? स्ट्रोमा। ठीक है। और अब इस ग्रेना पे अगर मैं उस सपोज किसी एक 5 रुपी कॉइन को हटाऊं, जैसे दिस वन, इस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर को लैमेली बोल सकते हैं कई बार, इसको अगर उठा लूं तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। तो दिस स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स, 1 से थाइलाकॉइड 2, 3, 4, 5, मेनी थाइलाकॉइड्स मेक अप द ग्रेना। और ग्रेना में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होके एंड स्ट्रोमा में होता है, एक रिएक्शन होता है जो है डार्क रिएक्शन। तो हम साइड ऑफ डार्क रिएक्शन, जो कि एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। यहां होता है और यहां पे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे ग्लूकोज इकट्ठे होकर स्टार्च बनाते हैं, तो यहां पे क्या स्टोर हो जाता है? स्टार्च। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके, नाउ इन दिस ऑल्सो देयर आर वेरियस प्रोटीन मेकिंग यूनिट्स। और अब आपको पता होना चाहिए प्रोटीन मेकिंग यूनिट्स को क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। और इसको भी 70s लिख दीजिए, एज आई टोल्ड यू आई बी टॉकिंग अबाउट इट लेटर ऑन। दे ऑल्सो हैव अ लूप ऑफ डीएनए। दिस लूप ऑफ डीएनए होने की वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सो बोथ ऑफ दीज आर अगेन कॉल्ड व्हाट? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। अब समझ में आ गया? ये वन क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट स्कूल एग्जाम में। विच आर द 2 सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? इसका रीजन मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा दिया था, क्योंकि लूप ऑफ डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, ये अपने कुछ प्रोटीन कुछ एंजाइम खुद बना लेता है, इसको फोटोसिंथेसिस करना होता है। तो अभी अगर इसके पास ये दोनों नहीं होते तो बैठा रहता कि भाई जब न्यूक्लियस बोलेगा तो मैं प्रोटीन बनाऊंगा, प्रोटीन बना के फिर फोटोसिंथेसिस आगे बढ़ेगा, काम डिले हो जाता ना। तो इसके पास खुद क्या अपना है, ये अपने उस रिएक्शन के लिए जो भी एंजाइम वगैरह चाहिए ये बना लेता है। तो इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। सेमी बिकॉज इट इज नॉट टोटली ऑन इट्स ओन, इट कैन नॉट डिवाइड विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। अब इसके अंदर ऑब्वियसली यहां पे क्या बनता है? आई टोल्ड यू कि स्टार्च बनेगा, तो ये किधर स्टोर हो जाएगा? इस जगह पे। तो इसमें स्टार्च भी होगा। कुछ जगहों पे there will be droplets of oils and fats also. This can be fat globule बोल सकते हैं, globule for a round structure, fat globules भी होते हैं। ठीक है, तो fat globules भी present हो सकते हैं। So this is the overall
diagram of the chloroplast. It is called the kitchen of the cell. Its function is to do photosynthesis and prepare food. Food in the plant is stored in the form of starch. Starch is what? Collection of glucose. Glucose का फॉर्मूला होता है C6H12O6. Glucose has 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, कंबाइन करके बनाते हैं ग्लूकोज. और ग्लूकोज, n नंबर ऑफ ग्लूकोज, lots and lots glucose, they give starch, and food in the chloroplasts or the plant is stored in the form of starch. इतना क्लियर हो गया? This is about chloroplast, kitchen of the cell, a double membranous cell organelle which is also semi-autonomous because it has its own DNA and ribosome. So I'll wait for a moment to, और क्यों इसको ये खाना बनाता है ना, इसलिए इसको किचन बोलते हैं. जिस जगह पे खाना बनता है वो ऑब्वियसली किचन है. So it is called kitchen of the cell. So just draw it. I'll wait for some time. So hope you have drawn it and understood. ठीक है, तो आज हमने दो वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात की. डबल सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स विच इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इनके बारे में आप आराम से पढ़ लीजिए. कई सिमिलैरिटीज भी है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. माइटोकॉन्ड्रिया, आप देखो क्लोरोप्लास्ट, एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में. क्योंकि ऑब्वियसली हम धूप में खड़े हो जाएं तो हम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. हमारे पास क्या नहीं है? क्लोरोप्लास्ट नहीं है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया हम में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी है. वो भी तो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो अपना फूड भी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया हर ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं, बस प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होते. वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. अभी तो आप इतना ध्यान दीजिए, एनर्जी हमें जो मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है या माइटोकॉन्ड्रिया से, पावर हाउस ऑफ द सेल. और जो खाना हमें मिलता है इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट, वो बनता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. हमने ये दो सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस किए. प्रॉपरली इसको स्टडी करना एंड जस्ट मेक प्रॉपर नोट्स, स्टडी देम वेरी वेल and ask me any doubt if you have without any hesitation. Okay, so till we meet in the next lecture, bye bye, take care.